So first delivery of the power play goes as a dot delivery. Another lawful toss that has been missed by Somesh. Maybe the floodlights. That is not the usual occasion for the most of the batters of Govan soil, as hard ball cricket is played mostly in the day. Satish Yadav with the ball as the left-handed batsman is on the striking end. Still he decides to come over the stumps. Meanwhile, another good delivery slightly outside the off stump near the guideline. Good creeping from the all-rounder. So again, it is a dot delivery. Just a single from this over. Again, slightly outside the off stump. Wide is the immediate call from the umpire by stretching his arms. And that extra takes the team total to 2. Decent over. This has been bowled so far by Satish Yadav, not giving much room for the batter to go really after the bowling. 3 dot balls in this over. Another good delivery, could be well played. There's a chance of a catch. Fielder running after the ball, not able to get, but definitely will save couple of runs for their side. 2 runs for Ramesh as well as for his team SI Indians. Team total moves to 4. Final delivery of the power play over. So far, this is a decent over. Just 4 runs. Wonderful strike straight to the field. Oh my dear, couple of inches above the hand. Extended hand could not held on. Another welcome boundary on the very last delivery of the power play over. That sums up the total to 8 without any loss of wicket. So there is a small meeting out in the middle as a whom to give the ball to bowl the second over. So captain takes the ball in his hand and takes care of the proceeding. Second over bowled by Ajay Kewat. Full up is delivered. There's appeal. Strong appeal from keeper as well as the bowler, and up goes the finger. First wicket. Captain strikes in the second over on the very first delivery. Somesh back to the pavilion at the score of 8. DJ. Multiple role in this tournament. Sometimes he's the coordinator, sometimes supporter, sometimes a professional photographer, capturing all the moments for this tournament. So meanwhile, Ajay Kewat takes the first wicket in the second over.
Aniket Raut is the new man in at the striker's end. Will be facing Ajay. Ajay right arm round the stumps. Another heave and a miss. Lovely bowling continues from Ajay Kewat. Wicketkeeper standing close to the stumps so that there's no chance for the batsman to shuffle down the track. Good piece of work behind the stumps as well. So good strategies applied by Al Zargam Royal Challengers. Another lovely delivery, change in pace, equally well kept behind the stumps. So far, not a single run considered in this over by the captain. Captain leading from the front, setting an example for his fellow bowlers as how to carry on with the proceedings. And these dot balls definitely will boost the confidence of the other team members as well. So far, boundaries, runs are dried up. Another strong strike along the carpet. They are just settled for a single. That single takes the team total to 9. Now Ramesh is on striking end. All hopes, all eyes on Ramesh. Can he get some runs from this over? That is a big question in front of the spectators. So let's see whether he can get some runs. Second over still on. Captain setting the field for himself, wants his fielders at the proper position to avoid the boundaries and the catches to be taken. With that confidence, here we go with the next delivery. Change in pace. Ball travel to the same fielder where the captain has shifted the placement. This is a sign of a clever bowler. And with that, a single, team total moves to 10. Final delivery of the second over. Aniket Raut is on the striking end. So far both the batsmen are quiet with that bat. Another good strike along the carpet. Looks to be batsmen are not in a hurry. They know which bowlers to target. Maybe that must be in their mind, and that concludes over number 2. So after completion of 2, 11 for the loss of 1 wicket. So this is a crucial match even for SI Indians. If they win this match, then definitely they will be getting another 2 points and they will be in the contention. So meanwhile, the signal from the umpire towards the commentary box is that this is going to be the batting power play. So captain immediately hands over the ball to Rohan Salgaonkar, who has changed the course of the match in the previous encounter, where 9 wickets were in the hand, and he came and took 3 wickets in that over. And 3 crucial batsmen were sent back to the pavilion. Aniket Raut on the striking end. Let's see what he can do. A shrewd bowler in action from the stadium end into the batting power play over. Meanwhile, the first delivery goes out of the park into the night sky and finally lands out. With that big 6, score moves to 17. Finally, some power hitting. Can be seen. Switch it is the attempt. Good keeping continues from Fulton Kazi, who has done a just job with the bat and now showing his wicket keeping skills behind the stumps. All the safety gear, helmet is on.
Another good Yorker slightly outside the off stump. Look at the reaction from the wicketkeeper Farhad Qazi. Quick onto his feet. Reflective batsman, reflective fielder, reflective keeper as well. Having a very good eye sight. Another Yorker, Whitish Yorker. One is a call. The Jadhav run out. Direct hit would have put curtains for Aniket. I beg your pardon for Ramiz. But that's would have been another situation. Ramiz survives only if they have to hit the stumps, and definitely second wicket would have been back to the pavilion. Now the left-handed batsman on to the striking end. A challenge in front of Rohan Salgaonkar will be high on confidence as he is the man of the match, has bowled beautifully in the previous encounter. So let's see whether he can continue in the similar fashion as a left-handed batsman have arrived at the striker's end. Ramiz also man of the match of the previous match. So two valuable players against each other. Lovely bowling continue from Rohan, even for the left-handed batsman as well. Knows which are the right areas, and let me tell you, Rohan Salgaonkar is also a name that have won many best bowler prizes under his pocket, playing even out of Goa in the interstate tournaments. And recently, if any team is going to participate out of Goa, then definitely Rohan is included. Meanwhile, a lovely delivery ball going away from the batsman, a dot ball to end the batting power play over. So after completion of 3, score is 18 for the loss of 1 wicket. And now, as per the public demand, हल्का सा अपील और विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकलती हुई
विकेट एक 15-16 कदमों के रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग बार पर। अब मात्र दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान दिखाई देता हुआ ये फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं मिला। फिर से थोड़ा सा भीतरी किनारा लगा, गेंद चलेगी पहले बाउंस के बाद विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है तैनात, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और अनुष केरकर अपने बॉलिंग बार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं महेश भाइडकर। और गति में परिवर्तन, पुलर लेन की गेंद, हल्के से गेंद को ड्राइव किया, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री, तेजी के साथ आते गेंद को लपेटते अपने हाथों में, गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ अपना खाता शुरू किया महेश भाइडकर ने एक सिंगल के साथ। और बड़ी देर से जो स्कोर रुका हुआ था 18 पर, वो थोड़ा सा आगे निकला। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। सामने जो कि फील्डिंग अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम की। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर रमेश, और इस बार थोड़े से वाइड यॉर्कर पर गेंद, राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए अनुष केरकर, और एक बिंदी गेंद और एक डॉट गेंद के साथ फिर से वापस आते हुए अपने बॉलिंग बार पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है। टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का, फील्डिंग करने का फैसला। और बहुत ही अब तक का अगर इस मैच के बारे में बात की जाए तो लगभग जकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को। ओवर का खेल, रोहन सालगावकर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। क्या टर्निंग पॉइंट रहा था उनका ओवर, मुकाबला आखिर में दर्शन बांदेकर ने लगभग करीब लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन आखिरी गेंद पर मैच छूटा हाथों से। बढ़िया शॉट, थोड़ा सा ऑन द राइट खेला, पहला रन बड़ी तेजी के साथ कॉर्नर पर फील्डर, लेकिन उतनी तेज निकले फील्डर, दूसरे रन की शंका को समाप्त कर दिया मैदान पर। एक रन जुड़ गया, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा। 20 लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट पर। डे नाइट का क्रिकेट का सुरभि लाइट्स, शब्बीर भाई जो जुड़ चुके हैं, हमारे डीजे मैन, बहुत ही शानदार साउंड सिस्टम, दीपक कुमार, और ऑपरेटर थोड़ा सा जो कि बदल हो चुका है ऑपरेटर के साथ, दीपक के साथ। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट, गेंद खड़ी हो गई, देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, 2 फील्डर अगल बगल में, लेकिन आखिरकार गेंद हाथों से छोटी। जब तक गेंद को कलेक्ट करते, थ्रो करते, तब तक रन बनता हुआ स्कोर के खाते में। 2 रन और 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 22 रन पर। टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम, गौरव सावंत इस टूर्नामेंट के साथ, और उसी के साथ जीसीसी पातोड़ा के सभी टीम के मेंबर पिछले मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने से इस जो कि टूर्नामेंट के आयोजन के साथ जो कि जुड़ चुके हैं। हर एक का बिल्कुल जो कि मेहनत, और उस मेहनत का फल बिल्कुल मैदान पर दिखाई देता हुआ। बहुत ही सुंदर आयोजन, शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। सामने एक बार फिर से अगली गेंद, राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। छोटी गेंद, इस बार ये बड़ा मौका बना, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद, नो मैच लैंड में गेंद निकलती हुई, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर के खाते में जो तीसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा था, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा बल्लेबाजी को। और इस बार ओवर पेज गेंद, ये मौका बनेगा, देखना होगा विकेट कीपर खुद निकले गेंद के नीचे, कैच को दबोचते हुए सफलता मिलती हुई, तीसरा धक्का लगा टीम को।
जो संकट में थी अपनी टीम उसको थोड़ा सा संकट से बाहर निकाल रही है, लेकिन वहीं पर फिर से एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को रोहन सालगांवकर सामने से बॉलिंग मार्ग पर और न्यू बैटर मैदान पर। फुलर लेन की गेंद सामने ड्राइव किया, हवा में हल्का सा गोता लगाया अपने पॉलिथ्रो में गेंद को फील्ड करते हुए और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 13 रन की एक छोटी सी इनिंग, 2 चौके लगाए रमेश ने, आउट होकर वापस तीसरे विकेट के रूप में और न्यू बैटर मैदान पर सुब्रत गांवकर। और बढ़िया शॉट मिड विकेट पर, गेंद तारामंडल में डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, एक गजब का छक्का 6 रन के लिए। न्यू बैटर मैदान पर आते आते बड़ा शॉट, बिल्कुल सीएम ट्रॉफी, बड़ी तो ट्रॉफी रही थी, उस ट्रॉफी में बाइक का हकदार रहे थे वो खिलाड़ी अब मैदान पर आते आते बड़ा शॉट लगाया 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ा टोटल 32 रन पर। 5 ओवर का खेल, एक अच्छा ओवर, एक विकेट मिला, 10 रन जरूर दिए लेकिन एक विकेट को चटकाया। 2 ओवर उनका कोटा, 17 रन और एक विकेट मिली रोहन सालगांवकर। अंतिम ओवर का खेल जारी, कमेंट्री बॉक्स की ओर से नेहाल बिंड दिखाई देते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। 2-3 बड़े शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में और देखना होगा ऐसा इंडियंस आखिरकार 6 ओवर के बाद कितने रनों पर जो कि पहुंचते हैं, सामने कितना टारगेट रखते हैं। ऑप्टम से बाहर थोड़ा सा लाइन पर बट के अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 33 रनों पर। ऑन साइड पर बढ़िया टाइमिंग इस बार, लेकिन सामने बिल्कुल मिड विकेट के फील्डर के हाथों में गेंद निकलते हुए शानदार कैच और एक विकेट वापस निकलता हुआ। बिंड को एक बड़ा शॉट, लेकिन उसके बाद में मिड विकेट पर विकेट कैच को पकड़ा और स्कोर बोर्ड पर टोटल 33 रन 4 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल जारी। अपने टीम के लिए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा शफल हुए तो ऑफ स्टंप पर गेंद निकली, लेग स्टंप को छोड़कर बाहर, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। आने वाला मैच होगा, दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए। अमेजिंग और दाट सर्कल के बीच में अगला मैच होगा, दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से टॉस के लिए संपर्क करें। अमेजिंग सुपर जायंट्स और दाट सर्कल सनराइजर्स। पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़कर निकली इस बार, बिल्कुल खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन बीट हुए उस गेंद पर और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 34 रन 4 विकेट पर एसआई इंडियन क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। बढ़िया शॉट इस बार हाफ वाले पर लेकर एक गजब का टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बिल्कुल कोशिश थी फील्डर की, बहुत ही शानदार फील्डिंग, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक सुंदर फील्डिंग, एक बेहतरीन कैच और इसी के साथ सफलता मिलती हुई 5वीं।
बाउंड्री पर बिल्कुल सीमा रेखा पर एक बहुत ही शानदार कैच। मारुति होगी वापस और न्यू बैटर मैदान पर। नेहल बिंड बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, एक फुलर लेन की गेंद, बल्लेबाज को बिल्कुल बीट करते हुए गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर बोर्ड पर टोटल वहीं पर रुका हुआ 34 रन 5 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल अभी भी जारी मैच का। बाहरी किनारा लेते हुए लेकिन नो मैच लैंड में लगभग गेंद गिरती हुई, और जब तक डीप एक्सटक और बाउंड्री से आते फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 35 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन, एक स्लोवर वन लेकिन बहुत जल्दी पिक किया। देखना होगा वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर 1 रन, दूसरा रन होना चाहिए था लेकिन कोशिश नहीं हुई मैदान पर। एक सिंगल पर बिल्कुल संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को, और इस टोटल जो कि स्कोर हो चुका है 36 रन टारगेट रखा है। Next match, it will be between Amazing and Dhar Sakar. Amazing captain आणि Dhar Sakar captain Matsuyo. Captain of Amazing, captain of Dhar Sakar Matsuyo. So 37 is the target set in 6 overs here by SI Indians to Alzargam. Doesn't look to be a difficult one. ही मॅच जी आहे ती 6 षटकांची आणि 37 धावांची गरज. ओपनिंग बॅट्समॅन ओपनिंग फलंदाज जी सलामीची जोडी येत आहे ते आहेत फरदीन काझी, ज्यांनी सुंदर
फटकेबाजी केली आहे या मैदानामध्ये. एक चमकता सितारा आम्ही म्हणू शकतात या SGPL सीझन 2 चा. आणि फरदीन काझी याला मॅन ऑफ द सिरीजची एक कार वॅगनार पण मिळाली आहे. म्हणजे त्याचा जो टॅलेंट आहे त्याच्या एक भारी कामगिरी, त्याला इथे पण साजेशी कामगिरी तो करत आहेत. एक उभरता सितारा आम्ही म्हणू शकतो या क्रिकेटच्या मैदानामध्ये. आणि फरदीन काझी परत एकदा संदेश ठाकूर एक चांगला ऑलराऊंडर या गोव्याचा. आणि इकडे जर बघितलं तर असा इंडियन्सचा जो टोटल आहे तो जास्त नाही. आणि मला वाटतं ज्याप्रमाणे एक भरभरून फलंदाजी जी आहे ह्या टीमची अल-झरगमची, जास्त वेळ होणार नाही. आणि हा आहे रिव्हर्स स्वीपचा फटका आणि या फटक्यामुळे मिळणार आहे 4 रन. आणि ओपन जो केला आहे अकाउंट, जो हा चौकार आहे, सुंदरसा चौकार पॉइंटच्या दिशेने. फरदीन काझी फक्त 37 धावा पाहिजे. आणि बघूया पुढचा चेंडू. सागर उंच गेला आहे चेंडू आणि घेतला आहे हा झेल. पहिली विकेट घेतली आहे SI इंडियन्स. आणि सुंदर गोलंदाजी जो करत आहे एक चांगला खेळाडू, चांगला ऑलराऊंडर संदेश ठाकूर, नामवंत खेळाडू गोव्याचा. हरीश सर, दाडसकळ, थँक्यू सर. तर नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकारली दाडसकळ. आणि सर, हरीश सर, प्रेक्षकांसाठी काही तुम्ही नक्की प्रश्न विचारू शकता. आणि प्रेक्षकांसाठी या ठिकाणी एनर्जी ड्रिंक, जर अचूक प्रश्नाचं उत्तर असेल तर त्यांच्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी एनर्जी ड्रिंक पुरस्कृत केलंय. खूप खूप धन्यवाद. अधूनमधून ज्या वेळी नक्कीच आपल्याला वेळ मिळेल त्यावेळी नक्कीच प्रेक्षकांची पण संवाद साधूया या स्पर्धेत. मी जाणार प्रेक्षकामध्ये जाणार, पण आला सध्या मलाच एनर्जी ड्रिंकची गरज आहे. नक्की तुमच्यासाठी पण असेल. जर ही मॅच जिंकली अल-झरगमने तर मला 3 मॅच मध्ये 6 गुण होणार. आणि जवळपास निश्चित करणार, पण निश्चित होणार नाही कारण आणखी पण भरपूर कॅल्क्युलेशन्स आहे याच्यामध्ये. ते आम्ही तुम्हाला सांगणार ही जेव्हा ओव्हर समाप्त होते. धाव फलकावर लागले आहेत 5 धावा, 1 चौकार आणि आता 1 रन. करण मोरे स्ट्राईकवरती. अमेय धामसेकर खेळणार आपला पहिला चेंडू. परत एकदा एक चांगला फलंदाज अमेय धामसेकर जो V मध्ये खेळतो, लॉंग ऑफच्या दिशेने. आणि कव्हर्स मध्ये पण फटकेबाजी करण्यास एक उत्तुंग कामगिरी करतो. बघूया परत एकदा फक्त 1 धावा, 6 धावा धावफलकावर अजून लागलेले आहेत. परत एकदा स्वीप शॉट मारण्याचा प्रयत्न तेवढा सफल होत नाही. फक्त 1 धावा मिळणार. आणि 1 षटकाच्या नंतर धावफलकावर लागले आहे 7 धावा आणि 1 विकेट बाद झाली आहे. ती म्हणतात ती फरदीन काझी यांची. ह्या एवढ्या मोठ्या जो टुर्नामेंट साऊथ गोवा प्रीमियर लीग याला आम्हाला जे स्पॉन्सर्स लाभले आहेत ते म्हणजे टायटल स्पॉन्सर्स आमचे sportsninja.in, तसेच को स्पॉन्सर्स इमो आणि DigiCom, ज्यांनी मॅन ऑफ द सिरीजची इलेक्ट्रिक बाईक आणि एक सायकल इकडे स्पॉन्सर केली आहे. अर्शद दाफेदार गोलंदाजी करण्यात येत आहे. दुसरा षटक. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त आणि क्षेत्ररक्षणात बदल होत आहे. 4 क्षेत्ररक्षक 30 गजच्या आत आणि 5 खेळाडू बाहेर.
अजूनपर्यंत हर्षद दावेदार जसं नाव आहे त्याचे साजेशी कामगिरी करू शकला नाही आणि बघूया या मॅचमध्ये काय दुसरं काहीतरी दर्शन घडवून आणतो. गोलंदाजीमध्ये परत एकदा स्लोअर गेंदबाज गोलंदाजी करण्यात आणि फक्त मला वाटतं फक्त एक रन रिस्क पण घेत नाही फलंदाज. फक्त एक धाव फलकावर जोडत आहेत आणि या एक धावेनंतर स्कोर बोर्डवरती लागत आहे फक्त 8 धावा. पाठलाग करत आहे 37 रनांचा 6 षटकामध्ये. मला रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न पण विफल. जास्त काही प्रेशर नाही फलंदाजावरती कारण जो टार्गेट आहे तो काही जास्त नाही 6 रन्स प्रति ओव्हर. परत एकदा कट शॉट आणि हा दुसरा फलंदाज बाद पॉइंटच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न कट शॉट पण फिल्डर तिकडे होता आणि त्याने आज एक सुंदरशी झील टिपली आणि दुसरा विकेट गारद. मला वाटतं अमेद अमचेकर परत एकदा पॅव्हिलियन में परतून जातोय. जास्त काही केलं नाही फक्त 1 धावा खेळून पॅव्हिलियनच्या दिशेने. आणि सर जर कदाचित हा धावसंख्येचा कमी धावसंख्येचा सामना नक्कीच आहे मैदानात, परंतु दुसऱ्या बाजूनं गोलंदाज चांगली कामगिरी करतायत, क्षेत्ररक्षक साथ देत आहेत. आणखी एक दोन गडी जर झटपट बाद झाले तर ही कमी धावसंख्येचे सामने सुद्धा एक नक्कीच चुरशीची लढत प्रेक्षकांना नक्की बघायला मिळू शकते या मैदानात. पण जी फलंदाजी जर आम्ही बघितली अर्ज झरगमची ती मला वाटतं एकदम मजबूत आहे. 7, 8, 9 जे फलंदाज आहेत ते बॅटिंग करू शकतात. जर गरज भासली तर मला वाटतं षटकार पण खेचू शकतात असे फलंदाज आहेत या अल झरगम टीम मध्ये. नवदीप गावकर ज्यांनी एक जी ओव्हर होती पिच मागच्या मॅच मध्ये त्याच्या मध्ये 4 षटकार 4 चेंडू मध्ये खेचले होते आणि विजय आणला होता आपल्या संघासाठी. परत एकदा हर्षद दाफेदार एक सुंदर गोलंदाजी इकडे फक्त आला आहे 1 रन या दुसऱ्या ओव्हर मध्ये आणि विकेट पण गारद केली आहे. परत एकदा अशोक सर जसं काल पण होतं का की जो जसा लाईटचा इफेक्ट आला होता तेव्हा जो स्कोर होता तो जवळपास हाच होता म्हणजे 30, 40, 50 धावा आणि आज पण मला इकडे मला तेच दिसत आहे. बरोबर काल पण संध्याकाळच्या रात्रीच्या सत्रात कमी धाव, परंतु सर शेवटचा सामना मात्र एक मोठ्या धावसंख्येचा झाला या मैदानात. आपण कॅच होऊ शकतं बघूया. फिल्डर जातो आणि झेल टिपलाय सुंदर झेल आणि तिसरी विकेट गारद. इकडे फलंदाज येत आहेत आणि जात आहेत आणि स्कोर बोर्डवर धावफलकावरती फक्त आहेत 8 धावा आणि 3 फलंदाज गारद. म्हणजेच सर आपण म्हणू शकतो की एक सुरुवातीला वाटत होतं की सामना सोपा आहे, कमी धावसंख्येचा आहे, सहज विजय संपादन होईल, परंतु दुसऱ्या बाजूनं मात्र कौतुक करावं लागेल गोलंदाजीचं, क्षेत्ररक्षणाचं. ते अगदीच म्हणजे प्रयत्न तर सुंदर मैदानात होतोय आणि 3 गडी भराभर तंबूमध्ये परततायत. दिवसाच्या सत्रात मला वाटत होतं की चेंडू थोडा बॅटवरती येत आहे आणि आता वाटलं तर बॉल थोडा जेव्हा ग्राउंडवरती पिच होतो तेव्हा थोडा स्लो येत आहे बॅटवरती आणि मला वाटतं की फलंदाज आहे त्याला थोडी मुश्किल होत आहे इकडे. बरोबर सर, कारण हवामानात थोडासा गारवा सुरू झालाय आणि त्याचमुळे आउटफील्ड पर नक्की या ठिकाणी अतिशय गार, अगदी थंडगार. कदाचित त्याचमुळे असेल की विकेटवर टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा स्लो येतोय, फलंदाजांना तो टोलवण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागतात. बघूया सामना सरते शेवटी कशा प्रकारे या 2 संघांदरम्यान होतोय मैदानात. कधी कधी कमी धावसंख्या असलेली मॅच फार इंटरेस्टिंग होऊ शकते, त्याचा प्रत्यय येतोय आम्हाला इकडे. तिसरा गोलंदाज तिसरा षटक घेऊन येत आहे महेश बायडकर. इकडे कव्हरच्या दिशेने मारला होता हा आणि रनआउट. बघूया रनआउट होत आहे. एक मोठी अपील, डायरेक्ट हिट
आणि अंपायरने सिग्नल केला आहे थर्ड अंपायरला. बघूया डायरेक्ट हिट त्यानं आणखी एक विकेट घेऊन देते की नाही. सुंदर क्षेत्ररक्षण इकडे. जेवढा चांगला फटका तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. आणि बघूया आमचे तिसरे पंच सदगिरी नाईक या ठिकाणी tenniscricket.in बरोबर जोडले गेलेत. काय घडलंय बघूया या चेंडूवर. आपण LED स्क्रीनवर पण नक्कीच बघू शकता की हा जो प्रयत्न होता नॉट आउट आहे. आणि फलंदाज क्रीज मध्ये आत. 2 धाव फलकावर जोडणार आहे इकडे. आणि धाव फलकावर 10 धावा. तिसरं षटक चालू आहे. करण मोरे आणि अनुष केरकर सध्या बॅट्समॅन. आणि इकडे मला वाटतं ही पण विकेट आहे. आणि आणखी एक खेळगडू येत आहेत आणि जात आहे. आणि हा जो सामना आहे तो रंगतदार स्थितीत, कारण 4 जे खेळगडी आहेत ते बाद झाले आणि धाव फलकावर लागले आहेत फक्त 10 धावा. गोलंदाजाचं कौतुक नक्की करावं लागेल या सामन्यामध्ये, कारण जो सामना कमी धावसंख्येचा प्रतिस्पर्धी संघ अतिशय सहज जिंकतोय, परंतु त्याच सामन्यात मात्र गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक जीव ओतून कामगिरी करतायत. बघूया चौथा हादरा बसतोय आणि नवीन फलंदाज कुठला येतोय मैदानात. बघूया कोण फलंदाज येतो, कारण श्रेयस कदम पण अजून आहेत पॅव्हिलियन मध्ये. कोणाला पाठवता जर बॅटिंग प्रॅक्टिस देत आहेत लास्ट मॅच साठी. पण मला वाटतं नवीन फलंदाज निहाल बिंद नवा फलंदाज क्रीजवरती. महेश भायडकर ज्याला कोरगाव एक्सप्रेस म्हणतात, सुंदर गोलंदाजी केली आहे. पण इकडे जे धाव फलकावर लागले आहेत फक्त 37 धावा. आणि 37 धावावरती गोलंदाज यांना अचूक मारा करून विकेट्स पण कंटिन्युअस घ्यायला पाहिजे, नाहीतर ही मॅच एकतर्फा व्हायची शक्यता आहे. पण 4 विकेट्स ऑलरेडी गारद. सुंदर लेग ग्लान्स. क्षेत्ररक्षक फक्त 1 धावा इकडे जुळणार. धाव फलकावर 11 धावा. एक प्रयत्न आहे आमचा की जे मराठी व्ह्यूअर्स आहेत त्यांच्यासाठी मराठीमध्ये आम्ही कॉमेंट्री करू, कारण बरोबर सर, नक्कीच हा प्रयत्न आणि प्रयत्न अतिशय सुंदर आहे. परत एकदा सुंदर शॉट, फक्त 1 धावा लॉंग ऑफच्या दिशेने. इकडे डावखुरा फलंदाज अनुष केरकर ऑफ द मार्क विथ अ सिंगल. अजूनपर्यंत तिसरा जो षटक चालू आहे फक्त 1 चौकार बघितला आहे, तो पण फरदीन काजीच्या बॅट मधून. हे सुंदर शॉट, अप्रतिम शॉट. आणि डायरेक्ट स्क्रीन वरती काय सुंदर षटकार खेचला आहे निहाल बिंदूने. बराच वेळ मोठा फटका अगदी आवश्यक होता, कारण थोडंसं रन रेट पण वाढत चाललं होतं आणि कुठेतरी अडचणीत होता संघ. या षटकारानं पुन्हा सामन्यात थोडीशी आगेकूच पुढे करतोय हा संघ. सुंदर लेगलांस फिल्डर तिकडे. क्षेत्ररक्षण चांगलं एकदम अप्रतिम. आणि थ्रो पण बॉलरकडे महेश भायडकर. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त आणि 3 ओव्हरच्या षटकानंतर धाव फलकावर जोडले आहेत ते 19 धावा 4 विकेटच्या मोबदल्यात. एक बार फिर से जुड़ जाते कमेंट्री बॉक्स में हरीश काकोडकर के साथ, जो उनकी जुबान है अंग्रेजी के साथ. उद्याच्या दिवसात नक्कीच हरीश सर प्रयत्न असेल आमच्या समालोचकांचा इंग्लिश त्याचबरोबर हिंदी, मराठी आणि कोकणी कॉमेंट्री नक्कीच क्रीडा रसिकांसाठी असेल. परंतु त्या अगोदर मात्र एक बार फिर से जुड़ जाते कमेंट्री बॉक्स में सर.
हरीश काकोडकर के साथ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन लक्ष्य इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ 37 रनों का लक्ष्य यहाँ पे इस टीम ने रखा है अल सरगम रॉयल चैलेंजर्स के लिए। और 4 जो बल्लेबाज है वो वापस जा चुके हैं, लेकिन जो एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा शॉट जो खेला था वो काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा यहाँ पे निहाल बिंद का, क्योंकि कवर्स के दिशा में यहाँ पे शॉट खेलना काफी मुश्किल होता है। और बहुत ही सुंदर टाइमिंग वहां पर अनुष किरकर द्वारा और निहाल बिंद द्वारा। यहाँ पे अच्छा कट शॉट, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और उस मिस फील्डिंग का फायदा लेंगे यहाँ पे बल्लेबाज और 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। इस 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। रमीज यहाँ पे एक पहली बार मुझे लगता है गोवा में हमने उनको देखा है, और ऐसा इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। यहाँ पे अच्छा राउंड कारपेट खेला हुआ ये शॉट, सिर्फ 1 ही रन जुड़ सकता है खाते में, और इस 1 रन के जरिए फिर एक बार स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। मैन फ्रॉम केरला परफॉर्मिंग इन गोवा। मल्लपुरम एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं रमीश, कोरगांव एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं महेश भाइडकर, और सुंदर यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं यॉर्कर लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर। और एक अच्छा मैच होता हुआ, हालांकि लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन दर्शक फिर भी डटे हुए मैदान में देख रहे हैं, और ये कैच हो सकता है। और यहाँ पे और एक मौका, इसको भी लकवक लिया है यहाँ पे फील्डर ने, और 1 विकेट का पतन होता हुआ 5वीं विकेट जाती हुई अल सरगम रॉयल चैलेंजर्स। इक्कीस रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए और 5 विकेट, यानी कि 14 गेंदे बाकी, और चाहिए जीतने के लिए 15 रन। 14 गेंदों में 15, फिर भी मैच इंटरेस्टिंग। ये होता है क्रिकेट। अभी और 2 विकेट्स अगर यहां पे गिर जाते हैं तो ये लक्ष्य जो है वो उतना आसान नहीं होगा, काफी दबाव होगा। जो आने वाले बल्लेबाज है उनके ऊपर काफी दबाव महसूस करेंगे वो। अगर ये और अच्छी जाती है और 1 विकेट यहां पे आती है तो ये तगड़ी फाइट होगी यहां पे बल्ले और गेंद के बीच में। आनंद बद्री द्वारा 2 दिन में काफी अच्छा यहां पे माहौल, अच्छी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, और उनका अभी जो लक्ष्य है वो जो और 1 मैच बाकी है ऑक्सफोर्ड टाइटंस की, उनके ऊपर लक्ष्य केंद्रित। काफी बढ़िया प्लेयर भी रह चुके हैं और खेलते ही है भी है बड़े बड़े मैचों में, खासकर लेदर बॉल में जो होता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, वहां पे खेलते हैं। अगली जो मैच होगी वो अमेजिंग सुपर जायंट्स और धारसकार। अभी भी स्कोर बोर्ड के ऊपर सिर्फ 21 रन, यानी कि 16 रन अभी भी बाकी, 13 गेंदों में 16 रन। रमेश की काफी उम्दा गेंदबाजी, यहाँ पे एक सटीक गेंदबाजी, और कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पे किसी भी बल्लेबाज को अपनी बाहें खोलने का। यहाँ पे ये देखिए पूरी जो लेग साइड के ऊपर डाली हुई, और शॉर्ट मिड विकेट भी रखा था वहां पे कप्तान ने, और एक बढ़िया ओवर, सिर्फ मुझे लगता है यहाँ पे 2 रन दे चुके हैं और 1 विकेट भी हासिल कर चुके हैं इस चौथे ओवर में। और अभी भी स्कोर बोर्ड के ऊपर 21 रन और 5 विकेट का नुकसान यहाँ पे अल सरगम रॉयल चैलेंजर्स, यानी कि आखिरी जो 2 ओवर्स है वहां पे जीतने के लिए लक्ष्य है वो 16 रनों का। 12 गेंदे और 16 रन। और जब ये मैच खत्म होगी तो मैं दर्शकों के बीच में आऊंगा और कुछ सवाल पूछूंगा आपको। 12 गेंदे और 16 रन, और यहां पे वाइल्ड फायर
बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे ले चुके हैं बल्लेबाज। सो देखना चाहेंगे यहाँ पे गेंदबाज कौन आता है ये बैटिंग पावर प्ले डालने के लिए। संदेश ठाकुर को तो डालने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो 2 पावर प्लेस होती है वहां पे 2 गेंदबाज डालने जरूरी, और अरशद दाफेदार यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे। 16 रनों की दरकार यहाँ पे जीत के लिए अर्जगम रॉयल चैलेंजर्स। और दर्शकों के बीच में आऊंगा, कुछ सवाल पूछूंगा और अगर सवाल का सही जवाब दे सके तो आपको मिलेगा एक इनाम जो वाइल्ड फायर की ओर से दिया गया है, एक एनर्जी ड्रिंक। तो तैयार रहिएगा, थोड़ी देर में आपके बीच में मैं मौजूद रहूंगा, हरीश काकोडकर। सो कुछ तो इस टूर्नामेंट के बारे में, कुछ क्रिकेट के बारे में। और यहां पे अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, यही गेंदें करते हैं ज्यादातर, स्लोअर गेंद, एक स्लोअर लेग कटर, रनिंग उनकी काफी उम्दा, लेकिन जब क्रीज पर आते हैं तो एक स्लोअर लेग कटर जो खासियत है इनकी, ज्यादातर गेंदें स्लोअर लेग कटर डालते हैं। सिर्फ 1 रन आता हुआ इस पहली गेंद पर अरशद दाफेदार। जीत के लिए चाहिए 15 रन और 11 गेंदें बाकी, 11 गेंदें शेष। अभी भी अच्छा मैच, हालांकि लो स्कोरिंग मैच है लेकिन दर्शक अभी भी देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट पर। और यहां पे मुझे देखना चाहेंगे अंपायर का सिग्नल क्या होगा। ये डॉट गेंद कहते हुए अंपायर, क्योंकि शफल हो चुके थे बल्लेबाज, अगर शफल हो चुके हैं तो अंपायर भी अपने जो राइट्स है उस पर सही। फिर एक और एक गेंद, राउंड विकेट, अरशद दाफेदार। ये शॉर्ट गेंद थी और इसको उड़ाया ग्राउंड के बाहर दर्शकों में, और यहां पे मिलेगा और एक छक्का, बहुत ही बड़ा हिट। काफी बुरी गेंद थी यहां पे अरशद दाफेदार द्वारा, और इस छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 28, यानी कि और 9 रन दूर। 9 गेंदे और 9 रन। अभी क्वेश्चन थोड़ा अलजरगम रॉयल चैलेंजर्स के पाले में आता हुआ। अगर ये छक्का नहीं आता और एक डॉट गेंद आती तो मुझे लगता है बल्लेबाज भी काफी प्रेशर में आते। श्रेयस कदम यहां पे, और यहां पे फुल टॉस गेंद, और मुझे लगता है श्रेयस कदम यहां पे जो लोअर ऑर्डर में आते हुए वो काफी बढ़िया हो चुका है अलजरगम के लिए। 2 गेंदे और 2 छक्के, और मुझे लगता है एक प्राइज भी दिया था 500 रुपए का, वो इनाम के भी हकदार होंगे। 500 जो इनाम घोषित किया था उसके भी हकदार, लेकिन 3 रन यहां पे जीत के लिए अलजरगम रॉयल चैलेंजर्स को। और मुझे लगता है जिस तरह से श्रेयस बल्लेबाजी कर रहे हैं वो आसान सा लक्ष्य अभी होगा। 8 गेंदे बाकी, सिर्फ 3 रन, उतना मुश्किल नहीं, सिर्फ एक ही ओवर चाहिए थी यहां पे ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और उसको लगता है श्रेयस कदम आसानी से हासिल कर पाएंगे। ये भी शॉर्ट गेंद, उसको उठाया और खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। यहां पे मिलेगा सिर्फ 1 रन। इस 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। जीत के लिए सिर्फ 2 रन यहां पे दूर अलजरगम। यहां पे आएंगी आखिरी गेंद अरशद दाफेदार की, इसको उड़ाया गैप में और ये चौका हो सकता है, और इस तरीके से जीत चुके हैं ये मैच अलजरगम। हालांकि कुछ पलों के लिए ऐसा लगा ये मैच आखिरी ओवर पे जाएगा, लेकिन ये तीसरी जीत 3 मैचों में अलजरगम रॉयल चैलेंजर्स, और ये दूसरी हार तीसरे मैच में। सो अगर टेबल देखा जाए तो पहले पायदान पर यहां पे सीमित होंगे अलजरगम, लेकिन अगली मैच जो है वो काफी अहम अमेजिंग के लिए। अगर अमेजिंग यहां पे जीतती है तो 2 जीत होंगे उनके पास, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 4 टीमें अभी भी जिंदा इस टूर्नामेंट में, जो कि अमेजिंग, ऑक्सफोर्ड, ऐसा इंडियंस और अलजरगम। और प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार यहां पे, हालांकि बहुत ही लो स्कोरिंग था तो
यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच जाएगा निहाल बिंद को, जिन्होंने अपने एक ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी और एक छक्का लगाकर 9 रन निकाले थे। सो निहाल बिंद आ जाइए और अपना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेके जाइए।